Hello, fourth class students. How are you all? I hope you are fine. Now, students, let's start today's class. Before going to start our class, tell me what we have learned in our previous class. So, students, we have learned how to write a personal narrative in our previous class. So students, look at this. Today we will make corrections and improve our personal narrative. Now students, this is your paragraph. Now let's read. I am Sushan. Me go to Goodwill High School. I parents and I stay in Bulbul Nagar. During I free time at home, I likes to plant seeds and took care of the plants in the garden. I learned how to do this from grandfather who does it every day in the morning before he go to bath. To be a good gardener, I read books about plants because go to the best plant nursery to buy seeds. I use the garden tools and with my grandfather help I dug a hole in the ground and plant the seeds. After that I water the plants every day. I love gardening because I felt happy, so relaxed when saw I sow the seeds and see pretty flowers everywhere. So student, this is a paragraph. Now tell me, does the sentence me go to Goodwill High School sound correct? Is me the correct pronoun? Here me the correct pronoun? The correct pronoun here. Now student, in the next sentence, should the letter I be in the capital? Should the letter I be in the capital? Why? In the tenses used in the next sentence, correct? Which words in the sentence should be changed to make a grammatical error? Grammatical error. Does the sentence have a full stop at the end of the? Does all the sentence have a full stop at the end? Do the sentence start with the capital letters? Now let's check. Now tell me here in this sentence, I is the correct pronoun? Tell me. Now student, look at this. I am Sushant. Me. Here me is a incorrect pronoun. So we will use I pronoun here. I. खुद के लिए हम I यूज़ करते हैं बिकॉज I इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो सब्जेक्ट में है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? I प्रोनाउन राइट कर देंगे. नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस. I पेरेंट्स नहीं होता ना, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे I की प्लेस पे? माई. और माई का क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल. माई पेरेंट्स एंड आई स्टे इन बुलबुल नगर. ड्यूरिंग आई फ्री टाइम या माई फ्री टाइम? ड्यूरिंग माई फ्री टाइम. एट होम. और यहाँ पे आपका सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, तो हम एक लिटिल स्टॉप देंगे. उसके लिटिल स्टॉप देने के लिए क्या करना है? कॉमा यूज़ करेंगे. ड्यूरिंग माई फ्री टाइम एट होम आई लाइक टू प्लांट सीड्स एंड टू केयर ऑफ द प्लांट्स इन द गार्डन. यहाँ पे टुक है. टुक इज़ द करेक्ट टुक इज़ द करेक्ट वर्ब? नो. तो क्या लिखना है? आई लाइक्स. यहाँ पे लाइक्स टू प्लांट सीड्स एंड आई टेक केयर. यहाँ पे टुक का क्या हो जाएगा? टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन. सो स्टूडेंट्स, this is the correct paragraph. I am Sushan. I go to Goodwill High School. My parents and I stay in Bulbul Nagar. During my free time at home,
I likes to plant seeds and take care of the plants in the garden. Now student, let's check this second paragraph. Now look at here. I learned how to do this from grandfather. यहाँ पे हमें लेटेस्ट स्टॉप देना है इसलिए कोमा यूज कर रखा है इसमें. Who does it every day in the morning before he go आएगा यहाँ पे go आएगा. Now let's check. he है तो he क्या है हमारा सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ हम एस या ई ऐसे लगाते हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे goes. he goes to bath. let's check. फुल स्टॉप है. yes. now let's check students. अब यहाँ पे फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप के बाद लेटर कैसा आता है. हम कौन सा लेटर राइट करेंगे. कैपिटल लेटर. सो वी राइट डाउन हियर टू. टी को हम क्या कर देंगे अपर केस. टू बी अ गुड गार्डनर आई रीड बुक्स अबाउट प्लांट्स. अब यहाँ पे नाउ लेट्स चेक. यहाँ पे बिकॉज आएगा. बिकॉज कंजक्शन यूज करेंगे. आई रीड बुक्स अबाउट प्लांट्स बिकॉज गो टू द बेस्ट प्लांट नर्सरी. नो. यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे एंड. आई रीड बुक्स अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में बुक रीड करेगा और क्या एंड गो टू द बेस्ट प्लांट नर्सरीज. और वो कहाँ पे जाएगा बेस्ट प्लांट नर्सरीज में जाएगा टू बाय सीड्स और सीड्स को खरीदेगा. नाउ लेट्स चेक हेयर आई. अब आई फुल स्टॉप के बाद कैसा आएगा कैपिटल. वी विल यूज कैपिटल लेटर आई. फुल स्टॉप था इसलिए हम क्या यूज करेंगे फुल स्टॉप के बाद. आफ्टर फुल स्टॉप वी विल यूज capital letter. So we will use I here. I use the garden tools and with my grandfather's help. अब यहाँ पे हमें छोटा स्टॉप देना है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे कोमा. I dug a hole in the ground and plant the seeds. अब यहाँ पे चेक करिए. What we use here lowercase letter or capital letter. We will use capital letter after full stop. So we will use after. ये हमारा capital use करेंगे. After that अब हमें stop देना है. After that हम थोड़ा सा रुक रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे कोमा. After that I water the plant every day. और अब चेक करो एवरीडे के बाद फुल स्टॉप आ रहा है. हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे फुल स्टॉप. सो वी विल यूज फुल स्टॉप. नाउ आई लव गार्डनिंग बिकॉज आई फेल्ट हैप्पी. यहाँ पे फेल्ट यूज़ करेंगे. आई लव गार्डनिंग आपका किस में है कंटिन्यूस चल रहा है ना आपका. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फेल्ट की जगह पे आई फील हैप्पी. सो नाउ लेट्स चेक द कंजक्शन है. सो नो वी विल यूज एंड हियर. हैप्पी हो गया और रिलैक्स हो गए हैं. आई लव गार्डनिंग बिकॉज आई फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड व्हेन आई सो द सीड्स and see pretty flowers everywhere. Now student, this is your correct paragraph. Now students, tell me, can this paragraph follow these key questions? Student, these are the key questions. Can this paragraph follow these key questions? Let's check. What do I like to do? I यहाँ पे किसके लिए है सुशांत के लिए है. What do I like to do?
उसको क्या करना पसंद था। नाउ लेट, यहाँ पे देखिए उसने बोला है कि आई लाइक्स टू प्लांट सीड्स एंड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स इन द गार्डन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन डू आई डू इट, वो कब करता है। व्हेन डू आई डू इट, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम एट होम। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स क्वेश्चन 3, हाउ डू आई डू इट, वो कैसे करता है इसको। आप देखो यहाँ पे, नाउ लुक दिस, I read books about plants and go to the best plant nursery and buy seeds, and I use the garden tools with the grandfather's help. I dug a hole in the ground and plant the seeds. तो ये इस वे में कर, इसका आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन 4, who taught me to do it, who taught me to do it, I learned how to do this from my grandfather। तो ये आपका from grandfather, this is the answer for this question। now let's discuss this question, why do I do it, क्यों करता है वो। यहाँ पे देखिए, I love gardening because I feel happy and relaxed when I sow the seeds and see pretty flowers everywhere। So now students, in these are the key question, these key question help us to write a personal narrative, and this paragraph, these are in this paragraph all the questions are fulfilled। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में दिए ना, तो दीज के क्वेश्चन हेल्प अस टू राइट अ पर्सनल नरेटिव। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेक योर पर्सनल नरेटिव अकॉर्डिंग टू दीज की क्वेश्चंस। आपको अपना जो आपने पर्सनल नरेटिव राइट किया है S3 में, आपको चेक करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं या नहीं। ओके, now let's discuss our worksheet S3। now student, this is your worksheet, exchange essay with a partner and peer reviewing using the checklist। अब आपको, आपके पास आपका peer तो है नहीं और ना ही आप एक्सचेंज कर पाओगे वर्कशीट, तो आपको खुद ही चेक करने होंगे इनके आंसर्स। इफ नाउ लेट fill this checklist। The first paragraph tells you about the character and the hobby। आपको अपना जो पर्सनल नैरेटिव इस आपने वर्कशीट S3 में किया है उसको चेक करना है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कैरेक्टर और आपकी है हॉबी के बारे में बता रहा है। अगर यस है तो यस पे टिक करना है, इफ़ नो तो नो पे टिक करना है। द सेकेंड पैराग्राफ टेल्स यू मोर अबाउट द हॉबी, इफ़ यस तो यस और नो तो नो। The last paragraph tells you how it makes the character feel and why the character like it। If yes, you tick yes, अगर no है तो no पे टिक करना है। The sentences have been written using the correct pronoun। आपने जो अपना पर्सनल नरेटिव है उसमें करेक्ट प्रोनाउन यूज़ किए हैं तो yes, अगर नहीं किए हैं तो no। All the sentence being with कैपिटल लेटर एंड विथ फुल स्टॉप। आपको चेक करना है आपके पर्सनल नरेटिव में आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का यूज़ हो रहा है, अगर है तो येस। कंजक्शंस हैव बीन यूज करेक्टली। आपने जो कंजक्शंस यूज़ करे हैं एंड, और, सो, बट, अगर कंजक्शन करेक्टली यूज़ किए हैं तो येस, अगर नहीं किए हैं तो नो। और यहाँ पे लिखा हुआ है माई सजेशन, देयर इज़ अ रिटन माई सजेशन। और यहाँ पे आप अपना जो आपने पर्सनल नैरेटिव राइट किया है उसके बारे में अगर आपका कोई सजेशंस है तो आप अपनी मम्मा से यहाँ पे राइट करवाओगे। अब आप अपने फादर से भी यहाँ पे राइट करवा सकते हो। नाउ स्टूडेंट टेल मी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक फॉर एरर एंड रिवाइज। हमें पैराग्राफ में एरर चेक करने की नीड क्यों होती है, व्हाई।
It is important to review our writing and fix errors that it will be clear and easy to understand for the reader. When we publish something with error, it may be confusing or unclear and reflects badly on us. अगर हम एरर के साथ ही उसको पब्लिश करवा देंगे तो दूसरा कोई जो रीडर है उसको रीड करेगा तो वो क्या होगा, उसको जो हमारा होगा वो कन्फ्यूज, जो राइटिंग कर रखी है हमने पर्सन नरेटिव, वो क्या करेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और वो गंदा लगेगा. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू write, important to check the error in the personal narrative. So student, this is your S4. You have to complete this worksheet after watching this video.